UPSC demands only two things: clarity of concept and clarity of expression. Because Sresa, motivation is like bathing. You have to daily motivate yourself. If you would give one piece of advice to every UPSC aspirant, what would it be? Have minimalist approach, minimum input, maximum output. Physical books or e-books? Physical books, there is no second thought about it. We the sapien evolved in thousands year. हम लोगों ने, और ये डिजिटल वर्ल्ड तो अभी है, तो जो जिस वे में हम इवॉल्व हुए हैं उसको चेंज करने में अभी वक्त लगेगा, ऐसा मुझे लगता है. Top book recommendation for UPSC aspirants? But I will prefer NCERT और करंट अफेयर्स. जितना आपका स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी स्लीक होगी, जितना कम रिसोर्सेज पे आप डिपेंड करते हैं, उतने चांसेस सक्सेस के आपके पास ज़्यादा रहेंगे. लाइफ में करियर बनाने के लिए आपका अपना डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, स्किलिंग, इस पे काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज करियर नहीं बन सकते. If you had to take the UPSC exam today, which subject do you think would be your strongest one? Hi, I'm Shreyasa Vijay and you're watching Rhythm. I'm back with another segment on UPSC preparations, and today we have a very special guest with us, Mr. Manoj Kumar Jha, who is the director at GS Core IAS Coaching Institute in New Delhi and also a teacher, a mentor to civil services aspirants for last 25 years. Welcome to our show, sir. Thank you, Sresa. Thank you very much. Before we dive into UPSC discussions, I would like to know more about your journey. So I appeared in this examination in 95-96, and thereafter itself I started teaching, but it was a part-time sort of thing. But I continued in this field, you can say, as a part-time itself. In the weekends I was teaching, and I spent a lot of time in media. I wrote late Prime Minister Chandrasekhar's biography, and so many things I have done in media. But I continued with this you can say teaching whenever I got time. Later I realized that I can do better as far as you can say teaching is concerned, as far as mentoring is concerned. Then I started this GSS core, and along with this I'm doing a lot of work with the youth, and I'm trying to intervene in the education sector. So this is what all So about. how has your experience been till now in teaching and with youth? India is you can say the youngest nation of the world. So needless to say, youth is going to write the future. Otherwise also youth always writes the future. But in our country, as far as this examination is concerned, it is attached to the social prestige or anything else, or power or money or whatever it is. So youths are very much fascinated to you can say prepare for the civil services examination at all. But the darker side of this examination is that they used to spend a lot of time, in the sense 6 years, 7 years, trying multiple attempts, and at the same time it's very risky also. True. Risky in the sense that you are you can say at a time आप अपने जीवन के उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. So there I think that youth needs to give a rethink about the timing and attempts and something like that. So why do you think even after so much uncertainty, youth is obsessed with civil services? Sresa, one thing we have to understand. Number one, everyone want a good career. Who doesn't want it? तुमको भी good career चाहिए, सबको चाहिए. तो civil services gives opportunity to realize your potential. It's no doubt it's a very good career. Number one. Number two, you can say at the same time we need to understand here that good career is a process. तो एक एग्जामिनेशन से तो नहीं आने वाली है. एक एग्जामिनेशन से अगर ये लगता है कि हम क्वालिफाई कर लिए हैं और बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में, तो ऐसा नहीं है. गुड करियर इज ए प्रोसेस. आपको एक जर्नी में ट्रेवल करना पड़ेगा. सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इज बेसिकली व्हाई दे आर फैसिनेटेड. तो इस जॉब में आप ग्रो करने के चांसेस बहुत हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस है, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के चांसेस है. सेटिस्फेक्शन लेवल भी काफ़ी हद तक होती है इस सर्विसेज में. इसलिए यूथ फैसिनेटेड होते हैं. As far as you can say the failure is concerned, despite high failure rate, वो student largely they are motivated because failure तो होगा. इसलिए श्रेषा, क्योंकि जहाँ पे भी अगर बिग अचीवमेंट है
वहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है और वहाँ पे रेट ऑफ सक्सेस भी बहुत कम होगा। फॉर एग्जांपल, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे आप स्टार्टअप करना चाहते हो। आज हम सक्सेसफुल स्टार्टअप की तरफ देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितना फेलियर स्ट्रगल क्या है उसके वी डोंट नो, और रेट ऑफ सक्सेस क्या है वो भी बहुत कम है। तो ये करीब करीब मुझे लगता है हर वो जगह पे ये रियलिटी है रिस्क की, सक्सेस की, जहाँ पे भी आप देखोगे कि बहुत ही हाई अचीवमेंट, हाई एस्पिरेशंस है, वहाँ पे ये सारे फैक्टर्स अपने रोल प्ले करते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है कॉलेज से, इफ वी टॉक अबाउट मेडिकल इंजीनियरिंग, दे हैव अ सर्टेन पाथ टू फॉलो, बट इन केस ऑफ ह्यूमैनिटीज द कैनवास इज सो बिग, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू दोस स्टूडेंट्स? यस, दोनों ही साइड है इसके। कैनवास बहुत वाइड भी है और बहुत वाइड होने के कारण कंफ्यूजन और वेग भी है, काफी कंफ्यूजन है। व्हाट आई विल सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स दैट it's better if you start your journey little bit early in the campus itself. जब आप अंडर ग्रेजुएट हैं, वहीं से अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हैं तो आप अर्ली स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आफ्टर 1 or 2 attempts you should think that what else you want to explore in the life. There is no reason to waste some 6, 7, 8 years in this examination, not at all. I don't think like this. So I'm not saying कि प्लान बी से ही आप स्टार्ट करें, लेकिन आपको अपनी यूथफुल टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। उस एनर्जी को कहीं ना कहीं तो आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। If somebody is just starting their UPSC journey, so what would be the first piece of advice you would give to them? Cut from the noise. My simple advice to everyone is basically to cut from the noise. Okay. Why I am saying all these things? Because these days there is so much noise. ये कर लो, ऐसा कर लो, हर करियर में बहुत नॉइज है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या कोई भी और करियर हो, यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। इफ यू हैव दैट स्ट्रेटजी, इफ यू हैव दैट मेंटर जो आपके काम को सिंप्लीफाई कर सके, इफेक्टिव बना सके, आउटकम ओरिएंटेड बना सके, तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज हाई एट साइड। सो माय एडवाइस टू ऑल द यंगर्स, you can say those who are going to write the examination, is basically number 1, cut from the noise, make a strategy which is very simple and outcome oriented. So if we talk about the mentorship, today we have a lot of numerous coachings available across the country, in every nook and corner of the country, and especially in Delhi, be it Mukherjee Nagar, Karol Bagh, Rajendra Nagar, there are so many options and everybody promises to give the best results. So how should a candidate decide that which coaching will best support his UPSC journey? Number 1, it's not about coaching. Okay. सईशा, आपके सवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। नंबर 1, कोचिंग कभी किसी को IAS नहीं बना सकता। दे आर द फैसिलिटेटर्स। गुड मेंटर विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस, नंबर 1। नंबर 2, लेट मी वेरी फ्रैंक, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अभी नोटिस इशू हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि उन लोगों ने फेक रिजल्ट पब्लिश किए। नंबर 3, आप रिजल्ट के बेसिस पे, XYZ के बेसिस पे आप डिसीजन मत लीजिए, बिकॉज इट्स अ नॉइज। मोटिवेशन आपका कभी भी यूट्यूब से तो नहीं आ सकता। मोटिवेशन यूथ में या आप में या किसी में भी 2 चीज़ों से आती है। नंबर 1, आइदर यू आर डीपली मोटिवेटेड टू डू समथिंग, either you like a journalism or civil services or anything else. And number 2, rate of completion. अगर आपका टास्क कंप्लीशन रेट ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, तो वो एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन आता है कि यस, आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम मूविंग। सो these days there is a flood of motivational speaker on social media, so it has nothing to do with the career guidance etc. ये एक स्टूडेंट को खुद को एडुकेट करने जैसा है। जब तक वो खुद को एडुकेट नहीं करता है कि रियली हाउ आई शुड कीप मोटिवेटिंग माई सेल्फ, तब तक वो जर्नी नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि सैसा मोटिवेशन इज लाइक बाथिंग, यू हैव टू डेली मोटिवेट योर सेल्फ द वे वी बाथ ऑन डेली बेसिस। सिमिलरली यू विल हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, अदरवाइज इट्स अ लिटिल बिट लॉन्गर जर्नी, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, यू विल फील टायर्ड। ऐसा नहीं होना है। पूरी लाइफ की एक ही फिलॉसफी है, चरवती चरवती चरवती, मूव एंड मूव। So what according to you should a candidate incorporate in their strategies that leads to motivation, success? Motivation, success तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि उससे बड़ा मोटिवेशन तो कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में जब भी आप सक्सेसफुल होते हैं।
स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक ही चीज़ चाहिए कि यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट यूपीएससी डिमांड्स. So keep everything in and around the syllabus itself. That's it. Rest of the thing, just clean your desk. जितना आपका स्ट्रेटजी और आपकी स्ट्रेटजी स्लीक होगी, जितना कम रिसोर्सेज पे आप डिपेंड करते हैं, उतने चांसेस सक्सेस के आपके पास ज़्यादा रहेंगे. अननेसेसरली क्या हुआ है कि इस एग्जामिनेशन में बिकॉज ऑफ द सो मच नॉइज, एडवाइस एट्सेट्रा, कैंडिडेट की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो इनपुट हैवी है. नंबर ऑफ आवर्स, फाइन, नंबर ऑफ बुक्स, तो आप सिर्फ इनपुट को ही काउंट करते हैं और वो बहुत ही बल्की हो जाता है आपकी स्ट्रेटजी. You need to know, students used to know that please don't make your strategy, you can say, a bulky. Okay. It should not be input heavy. Rather than you need to educate yourself, train yourself in one way that it has to be outcome oriented. So given the vast syllabus, does relying on just books works, or because we have so many options available, as you were saying, online options and YouTube, there are teachers who are teaching on YouTube, so how should a candidate make sure that they do not miss out anything? श्रेषा, ये सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, इसलिए क्योंकि जब भी हम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की बात करते हैं तो जनरली आप देखोगे कि लोगों के दिमाग में पहली बार आता है कि ये तो टफ एग्ज़ाम है, इसमें उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है. आपको 10-12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं, 1-2 साल पढ़ने पड़ते हैं. सो इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स. What I would like to suggest that it's not about knowledge itself. So only books or YouTube or XYZ never works. It's knowledge plus skill. Okay. If you know that it's knowledge plus skill, then you know how to you can say make your strategy, which is based on one and only one philosophy, that is minimum input maximum output. तो इसलिए सिर्फ ये रिसोर्सेज का नहीं है. रिसोर्सेज तो मैं बार बार कर रहा हूँ. पहला काम ही आपका है कि यू नीड टू कीप योर रिसोर्सेज एट द मिनिमम. यू कीप योर सेल्फ स्टडी डेस्क क्लीन. मिनिमलिस्टिक अप्रोच ही आपको सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करा सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिकली वट एवर वैल्यू एडिशन यू वांट टू डू in preparation, you have to do it through reflection, thinking rather than buying anything. So more if you are involved in thinking and developing a clarity about any concept, idea, etc., chances are always very high to qualify this examination. So what UPSC exactly demands? UPSC demands only two things: clarity of concept and clarity of expression. Okay. आप चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं, आपने सिलेबस के आसपास ही वो अपनी एग्जामिनेशन को रखते हैं. फाइन. उनकी जो अनसर्टेनिटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट इज़ वेरी फेमस टू एंड इट्स वेरी पॉपुलर टू टॉक अबाउट यूपीएससी दैट इट्स वेरी अनसर्टेन एग्जामिनेशन. होगा, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. लेकिन अनसर्टेनिटी आ कहाँ से रही है? अनसर्टेनिटी सिलेबस से नहीं आती है. अनसर्टेनिटी हमेशा डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन से आती है. इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्होंने कुछ ऐसा पूछ दिया जो बिल्कुल सिलेबस के बाहर है या किसी ने सुना ही नहीं है. इट रेयरली हैपेंस. दे टेस्ट यू थ्रू द चेंजिंग द डिमांड्स, डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन का फ्रेम चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया, तो लोगों को लगता है घुसते ही कह रही यार ये तो हमने कुछ और पढ़ा था, कुछ और सोचा था, ये क्या पूछ लिया इससे. तो वहाँ वो अनसर्टेनिटी वहाँ है. तो यूपीएससी के जो, जैसे हर सर्विसेज में होता है ना, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो आप बायोलॉजी पढ़ के तो नहीं जाते हैं, और अगर आप डॉक्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज पढ़ के सिविल इंजीनियर का एग्जाम नहीं दे रहे हैं. तो एवरीवेयर देयर इज सम स्पेसिफिक डिमांड. तो यही है. इट्स फर्स्ट एंड फंडामेंटल थिंग इज बेसिकली योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. तो अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी चीज के बारे में है तो पहली शुरुआत तो वही है. उसके बाद कोई भी एग्जामिनेशन की तरह ये भी एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है. अल्टीमेटली एक्सप्रेशन इज द आउटपुट. तो यही दो पिलर ही हैं जिसके आसपास सारे एग्जामिनेशन टिके हुए हैं. तो जैसे अपने एक्सप्रेशन और कॉन्सेप्ट्स की बात की, तो प्रीलिम्स और मेंस में कैसे कैंडिडेट्स डिफरेंशिएट करें उनकी स्ट्रैटेजीज को, बिकॉज दोनों ही बहुत ही अलग नेचर के एग्जाम्स हैं. डेफिनेटली यस, नो डाउट अबाउट इट. बट कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्सेप्ट्स. Concepts will never change according to the prelims or mains. Okay. So let's say कि if you are going through the geography or geomorphology or climatology or fundamental light or anything else, the basic concept will remain same for the PT and basic concept will remain same for the mains. It will same. Now as far as approach is concerned, certainly PT demands more objectivity because it's MCQ. So it's black and white like anything. Fine.
And in main examination, it's basically issues. So your opinion matters. How do you see any issue? How do you articulate analysis? So expression becomes very key to qualify a main examination. But दो पार्ट हैं इसके. Number one, concepts are concepts. It will remain same. Fine. For PT, your approach should be more objective. And here, your opinion matters a lot. In the sense, आप issues, analysis, etc. को ज़्यादा आप डील करते हैं मेन एग्जामिनेशन में. So this is what. तो अर्जुन, आप ओपिनियंस की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई एनालिसिस में उतना अच्छा नहीं है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? Analysis is basically what? Analysis is your ability to evaluate, examine the ground realities. Okay. It's the consequences. चाहे किसी का भी हो, चाहे वो इजराइल इशू हो या फ्लड हो या you can say some disaster हो, इसलिए. तो अगर आपकी एबिलिटी है क्रिटिकल थिंकिंग की तो आप एनालिटिकल हो जाते हैं. अगर आपकी नहीं है तो आप एनालिटिकल नहीं हो पाएंगे और ऐसे स्टूडेंट फंसते सबसे ज़्यादा है. Okay. और जब भी आप स्पून फीड करेंगे कैंडिडेट को या यूट्यूबर स्पून फीड करेगा तो चांसेस आर ऑलवेज वेरी हाई टू मीट द डिसास्टर. Because this examination is not only about information. Try to understand. Information is not only yours. Information is of everyone. इंफॉर्मेशन तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सभी लोगों का है, सभी का है. व्हाट इज योर्स, व्हाट इज माइन, इट्स बेसिकली द वे वी सी द इंफॉर्मेशन. वो हमें यूनिक बनाता है. दैट यू, यस, आवर पर्सपेक्टिव. दैट इज समथिंग स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो पर्सपेक्टिव हम डेवलप कैसे करें. वहीं पे जो मास्टर की है ना इस एग्जामिनेशन का, वो मास्टर की वहीं पे है जब आप एक इंडिविजुअल की तरह चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं. इट्स नॉट फ्रॉम यू कैन से कि सब यही कर रहे हैं तो हम भी यही करें. आप कीजिए साहब, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपका अपना देखने का नजरिया तो होगा ना. होना चाहिए. So what's the most underestimated thing that candidates generally avoid but they should focus more on? जनरली स्टूडेंट्स जो हैं वो स्किल के रूप में इस एग्जामिनेशन को नहीं देखते हैं कि इट डिमांड सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स आल्सो. दे थिंक दैट ओनली नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इज इनफ एंड इम्पॉर्टेंट. तो उनकी पूरी जो ताकत है, पूरी जो रिसोर्सेस है, वो सिर्फ एक ही जगह लगती है, वो है कंटेंट प्रोक्योरमेंट. Please try to understand this examination is not about content procurement because it's endless. Content procurement is endless. ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना. आप करते चलो. हिस्ट्री में आप चाहें तो PhD कर सकते हैं, सवाल उसका नहीं है. But somewhere you will have to realize कि content procurement has its limitation and you should not try to make it endless. वो एक सबसे बड़ा डेंजर है जो स्टूडेंट्स के लिए एंजाइटी क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है. फेलियर का सबसे बड़ा रीजन वो है. अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये एक हैंडल करने आ गया तो होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो, बट द चांसेस आर ऑलवेज हाई टू डू गुड एंड टू रिमेन कूल, काम, कंपोस्ट. बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट करने के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि दिस वॉज नॉट समथिंग दे शुड हैव डन, और वो फिर बहुत ही क्लूलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में. कई मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं. तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? बहुत टफ है. बहुत टफ इसलिए है क्योंकि आप जब 5-6 साल, 7 साल या 8 साल एक एग्जामिनेशन को ट्राई कर रहे हो, एक करियर को ट्राई कर रहे हो, और फिर इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप 6 साल 7 साल ट्राई करने के बाद कोई एक्स्ट्रा स्किल सेट आपको मिलती है, नहीं मिलता है. हाँ. या वो कोई डिग्री मिल रही है जिसको मार्केट रिकॉग्नाइज करती हो. Exactly. तो वो एक डिफ़िकल्ट टाइम है. और मुझे लगता है कि जो मेरा सजेशन रहेगा स्टूडेंट को, ट्राई अर्ली. आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग you can say other options also in life rather than just waiting you can say for 6, 7, 8 years. क्योंकि पहले और अभी में एक डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अब अल्टरनेट करियर, बेटर करियर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अब हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. सिविल सर्विस बहुत एग्जांपल में आप ये ले लो ना. आप अभी की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, इकॉनमी में तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक करियर के कंटेक्स्ट में अगर देखें आप, तो आपकी जो हॉबी है उसके आसपास ही बहुत सारी चीज़ों को आप बिल्ड कर सकते हैं. डिजिटल स्पेस में आप बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आप कर सकते हैं. ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें रिसोर्स इंटेंसिव नहीं है. इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट स्टार्टअप बट एवरीवन कैन नॉट गो देयर. लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो या डिजिटल स्पेस में कुछ करना हो, तो यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये रिसोर्स इंटेंसिव नहीं है, तो चांसेस है कि वहाँ पे वो एक्सेल कर जाए. सो देयर दे नीड टू थिंक अबाउट देयर स्किल सेट, स्ट्रेंथ,
where they can do, what they can do, where they can contribute. इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तो रास्ते दिखने लग जाएंगे. फिर उस पर चलना पड़ेगा, क्योंकि करियर तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि गुड करियर इज ए प्रोसेस. ये कभी भी एक एग्जामिनेशन से नहीं आ सकती. जैसे मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं सबके गार्जियन एक ही चीज कहते हैं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि बेटा मन लगा के पढ़ो, अगर बोर्ड में अच्छा किया तो लाइफ सेट है, करियर बन जाएगी. आई एम आस्किंग टू एवरीवन, तुम लोग जो भी देख रहे हो उसमें से बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद कितने की करियर सेट हुई? Do coaching institutes have such kind of policies to, address the mental issues and struggle of candidates, or they just leave them on their own? It's a very tough question, but very important. Generally, coaching institutes are not doing this. Okay. Unfortunately, and let me admit very candid, mental health का issue है, अब बहुत बड़ा issue है, क्योंकि stress है, anxiety है, pressure है, youthful time waste होने का issue है इसमें से. So they are just into, you can say, the information feeding. वो एक बहुत बड़ा issue है, बहुत बड़ा issue है, concern है. We are in talk with one you can say startup that is called Listeners. Okay. They are doing fantastic in the segment of mental health, etc. और हम लोगों ने already काम start कर दिया है. और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न और इशू है, जहाँ पे मुझे लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मस्ट प्ले, यू कैन से, बिग रोल. आई डू एडमिट. Okay, so what about the candidates, such candidates, like what options do they have after they have exhausted all the attempts? See, at the age of, if you have reached to 28 or 30, to be very fair, हायर एजुकेशन के ऑप्शंस क्लोज हो चुके होते हैं, क्योंकि आप फिर वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोबारा और फिर करेंगे. अगर आपने जॉब छोड़ी है तो एक गैप इतना हो जाता है कि आप उस इंडस्ट्री में वापस नहीं जा सकते हैं. इसमें से एक ही है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट स्किल सेट्स यू हैव, नंबर 1. नंबर 2, in which domain you want to contribute or in which domain you think that you can do well. Domain इसीलिए, my dear friends, क्योंकि जब आप domain identify कर लेते हैं, then it becomes very clear that how to travel, how to go, how to move, what to do, what set of skills. चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो डिजिटल स्पेस हो, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो लर्निंग इकोनॉमी हो, चाहे कोई भी हो. बट the first thing first, you need to pick the domain you think that you can do well. तो इसलिए अगर आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया है या फिर आप इस एग्जामिनेशन के साइकिल से बाहर निकालना चाहते हैं, the first thing first, you need to identify the domain first. डोमेन चुन लो, बाकी के काम बहुत आसान हो जाएंगे. लेकिन अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो कि फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 6-7 साल प्रिपेयर करके बैठे हैं. बहुत सारे आप देखेंगे तो शायद यही ओल्ड राजेंद्र नगर में बुक्स बेचते हुए दिख जाएंगे या कुछ हो जाएंगे. तो वो जो एक हमारे पास लर्निंग सेट ऑफ स्टूडेंट है, लर्न सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके लिए क्या ऑप्शंस है? मतलब इज देयर समथिंग दैट गवर्नमेंट शुड डू और कोचिंग इंस्टीट्यूट शुड डू? गवर्नमेंट की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए. ओके. इसलिए क्योंकि हम अगर हर एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से रखेंगे तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी. सो इट्स ऑल्सो वी नीड टू लर्न दैट फॉर एवरीथिंग वी कैन नॉट लुक एट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टास्क है, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको लाइफ में करियर बनाने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है. लाइफ में करियर बनाने के लिए आपका अपना डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट, स्किलिंग, इस पे काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज करियर नहीं बन सकती. ओके. करियर नहीं बन सकती. आपको डोमेन चुनना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा. देयर इज नो सेकंड ऑप्शन इन लाइफ. इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ, ऑन योर स्किल सेट, नोबडी कैन स्टॉप यू. यू विल ग्रो, यू विल शाइन, यू विल थ्राइव. Okay, so let's come back to the UPSC strategies. जो स्टूडेंट्स सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि कई बार टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? ये बहुत बड़ा इशू है. हाँ. जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से, और मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, मिलता हूँ स्टूडेंट से, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है. और मेरा भी एक ही पेट आंसर है सभी को, इट्स नॉट टाइम मैनेजमेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज यू, मी और एनीबडी एल्स. इट्स बेसिकली माइंड मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट जैसे कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए क्योंकि तुम 24 घंटे को ना तो 23 कर सकते हो ना 25 कर सकते हो. जो एग्जॉस्टेड टाइम, जो अवेलेबल टाइम है, उसी में आपको प्रोडक्टिव बनाना है. इट्स माइंड गेम.
इट्स सेटिंग द प्रायोरिटीज. आप 50 काम एक साथ मत करो कि एक लिस्ट बना लिए, टू डू लिस्ट. नो, you will have to set the priorities that this is how you have to do 3-4 things, but the priority is this. तो अगर आप प्रायोरिटी के साथ मूव करोगे तो टाइम मैनेज करना आसान हो जाएगा. अगर लगेगा कि आपको सारी चीजें एक साथ करनी है, यू कैन नॉट डू, इट विल लीड टू एंजाइटी, इट विल लीव टू यू कैन से प्रेशर. और वो एक अच्छा साइन नहीं है करियर के लिए कि आप प्रेशर में, एंजाइटी में है. बिकॉज अंटिल अनलेस यू आर कूल, काम, कंपोज्ड, आउटकम नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी. So, अगर कोई फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट है, उसके लिए अगर आप कोई पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान अगर क्रिएट करना चाहेंगे तो व्हाट वुड इट लुक लाइक? पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान में आप वहाँ से स्टार्ट करो जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है. नंबर 1, इसलिए क्योंकि वो आपको थोड़ा मोटिवेशन देगा, बिकॉज यू लाइक दैट सब्जेक्ट. नंबर 1. नंबर 2, ऑलवेज गो वेरी इजी. जितना आप कंफर्टेबल हैं पढ़ने के लिए, टाइम देने के लिए, वहाँ से आप स्टार्ट करो और धीरे धीरे एलिवेट करो. आप एक बार में एलिवेट नहीं कर सकते. इट्स अ प्रोसेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो आप ग्रेजुअली मूव करना स्टार्ट करो. और मेरा सेशन सबको होता है कि आप अपनी पूरी टाइम टेबल इस तरह से बनाओ जहाँ पे रेट ऑफ कंप्लीशन बहुत हाई होना चाहिए. सो एवरीथिंग डू इन द बिट साइज. Whether you are going for any subject or current affairs or anything for that matter, it has to be in bit size. मैंने छोटे छोटे चंक में अगर बटा हुआ हो और डिवाइडेड हो हर चीज़, तो रेट ऑफ कंप्लीशन ज़्यादा होगी. जब भी रेट ऑफ कंप्लीशन ज़्यादा होगी, तुम्हारी मोटिवेशन हमेशा ही बेहतर होगी. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. बट बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऑलरेडी कमिटमेंट्स होते हैं, वेदर इट्स फैमिली और जॉब. हर कोई फुल टाइम एस्पिरेंट्स नहीं होते हैं, तो उनके लिए वो कैसे टाइम मैनेज करें? ये फुल टाइम में जाना भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे होंगे कमिटमेंट, होंगे उनके, बहुत कमिटमेंट होंगे, उनके फ्रेंड सर्किल के कमिटमेंट होंगे, और सबसे बड़ा कमिटमेंट तो सोशल मीडिया ही है. आजकल हर कोई रील देखता है, शॉर्ट्स देखता है. तो वहां पे अगर आप 2 घंटा दे रहे हो तो आपका वेस्टेज नहीं माना जाता है. लेकिन फिर आप आते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास. आप ठीक है, वेल थॉट. मुझे ये लगता है कि जैसे कॉलेज में आप अगर हो तो कॉलेज शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, आई ऑलवेज से. इसीलिए क्योंकि ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा. कैंपस की लाइफ आपको दोबारा नहीं मिल सकती है. तो कैंपस में तो खुल के जीना और फुल लाइफ जीना है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है. सिविल सर्विसेज हो नहीं हो बाद में देख लेंगे, लेकिन कैंपस की लाइफ है. कैंपस आपको एक बहुत अच्छा फाउंडेशन देता है अपनी लाइफ के लिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशलाइजेशन बहुत अच्छी होती है वहाँ पे, इसलिए उसको प्रायोरिटी दो. नंबर 1. नंबर 2, अब आता है टाइम मैनेज कैसे करें. आपके पास मॉर्निंग और लेट इवनिंग का टाइम और वीकेंड, ये 3 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप चाहें तो आप इसको को हार्नेस कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिव वे में कर सकते हैं. सो यू नीड टू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि वो स्पेस कहाँ पे है जहाँ पे हम बहुत ही कंसंट्रेटेड वे में एफर्ट डालें और उसकी प्रोडक्टिविटी हाई हो. What are the basic resources of current affairs that aspirants should consume? Because there are so many newspapers, magazines, without being overwhelmed. Everything, everywhere there are so many things. Nowadays information तो है ही, और current affairs का ही नहीं है, सब कुछ overwhelmed है. आप एक रिसोर्स पे रिलाई करो, that's it. Okay. मैंने कहा ना, जब तक आप मिनिमलिस्ट अप्रोच नहीं रखोगे तब तक आपकी आउटपुट नहीं होगी. क्योंकि आपको कंज्यूम करना है, प्रोसेस करना है उसको. इसलिए कोई भी एक न्यूज़पेपर जो भी आपको अच्छा लगता हो, कंफर्टेबली हो, आप स्टार्ट करने के लिए, इवन जो भी न्यूज़पेपर आपको लगता हो कि इट्स वेरी इजी फॉर यू, कंफर्टेबल फॉर यू, स्टार्ट एंड पिक वन डेडिकेटेड ऑनलाइन रिसोर्सेस. जो भी आपको अच्छा लगता हो कि एक ऑनलाइन रिसोर्सेस, कोई भी एक ऑनलाइन रिसोर्स कर लो और एक न्यूज़पेपर ले लो. दीज 2 थिंग्स आर इजी टू मैनेज. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई कैन से. मैं लिस्ट कहूँ तो मैं आधे घंटे करंट अफेयर्स पे ही लिस्ट कर सकता हूँ, बट इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, इट विल नॉट गिव यू द सोल्यूशन. सो सोल्यूशन इज सिंपल, एक न्यूज़पेपर, एक ऑनलाइन रिसोर्सेज, एंड फिक्स इट, डोंट चेंज इट. Should we do a rapid fire round? I have prepared some questions for you. You can. Cool. So let's switch things up a bit. I'm going to throw some questions at you, and don't overthink. You have to just say whatever comes to your mind. Okay. So, what's your favorite part about being a UPSC coach? You can say talking to the students. Okay. If you would give one piece of advice to every UPSC aspirant, what would it be? Have minimalist approach, minimum input, maximum output. Physical books or e-books? Physical books. There is no second thought about it. And why so? Because you can say this examination is more about in the physical format itself. Okay. So that's gel with us. And also I would like to say, we the sapien evolved in thousands year.
हम लोगों ने, और ये डिजिटल वर्ल्ड तो अभी है, तो जो जिस वे में हम इवॉल्व हुए हैं उसको चेंज करने में अभी वक्त लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। Okay, so your most rewarding experience as a UPSC coach so far? When I you can say address the concern of students, especially those who could not qualify it. तो जब मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ और मुझे लगता है कि आई कैन एड्रेस देयर प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है कि आई एम मोर सक्सेसफुल रादर देन द यू कैन से सीइंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स लिस्ट। तो वो तो ठीक है, उनका तो हो गया, वो तो अब लवासना जाएंगे ट्रेनिंग में। इनका नहीं हुआ, दे नीड मोर एंड यू कैन से बेटर केयर एंड सपोर्ट। Exactly. So, what advice do you generally give to them? Number one, that identify the gaps immediately. Fine. Give little bit time to yourself to settle down. क्योंकि जब हम इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो पहला काम यही है कि आप अपने को टाइम दो जहाँ पे आप थोड़ा सा सेटल कर जाओ, एंड देन जस्ट थिंक दैट डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू। Okay. Your favorite subject to teach in the UPSC curriculum? My favorite subject is, in any case, in main examination, where everything is related to the expression, answer writing, tests, assessment. Because in assessment, I have found कि अगर आप स्टूडेंट के साथ अगर असेसमेंट में इन्वॉल्व हैं तो आप उनको गैप आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं, जहाँ से उनका एफर्ट बहुत ही फोकस्ड हो जाता है। Okay. Top book recommendation for UPSC aspirants? आई वुड से सभी स्टैंडर्ड बुक ही हैं इसमें से, बट आई विल प्रेफर टू से कि आप एनसीईआरटी और करंट अफेयर्स, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है अपार्ट फ्रॉम जो जनरल बुक्स हैं उसके अपार्ट फ्रॉम दैट। Okay. If you had to take the UPSC exam today, which subject do you think would be your strongest one? I think polity and geography probably I will do good. हो सकता है मैं मॉडर्न इंडिया में भी अच्छा करूँ, बहुत अच्छा करूँ। तो ये 3 एरिया में अच्छा कर सकता हूँ। जहाँ मुझे लगता है मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो डेफिनेटली स्पेशली द बायो सेगमेंट एंड ऑल, जहाँ पे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। The most challenging topic to teach and why? Anything which is very subjective demands interdisciplinary. That demands a very good understanding, clarity, etc. तो कोई भी हो, चाहे वो पेपर 2 हो, 3 हो, पॉलिटी हो, एथिक्स हो, जो भी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच डिमांड करती है वो हमेशा ही चैलेंजिंग होगी, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे वो किसी के लिए भी हो। Okay. If you could go back to the start of your coaching journey, what advice would you give to yourself? I will probably advise to myself that let's engage more with the students. Okay, so that's it. It Thank was an you. amazing conversation with you. So this was our conversation with Mr. Manoj Kumar Jha. I hope by now he must have cleared some of your doubts and give clarity to your UPSC preparation journey. If you still have some more doubts and questions, please do mention them in our comment box. We'll be back to address them. Until then, keep learning and watching Rhythm.